तो एक सबसे बड़ा डाउट क्रिकेट गेम में विनर टीम कौन होगा इन केस ऑफ रेन, यानी अगर बारिश हो जाए तो उस केस में कौन से टीम को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। इस चीज़ पे जो मेरे डाउट्स थे वो मुझे यहाँ जो इंटरनेट से मिला है यूजिंग जेमिनाई ऐप, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये डकवर्थ लुइस मेथड हमने काफ़ी बार मैच के दौरान देखा है, जिसके बेसिस पे टीम को विनर डिक्लेयर किया जाता था इन केस ऑफ रेन, बारिश होने की स्थिति में। अगर बीच मैच में बारिश हो जाए तो उस केस में विनर टीम का फैसला डकवर्थ लुइस मेथड से होता था। यह हमने काफ़ी बार लाइव टेलीविज़न पर देखा है जब मैच इंटरप्ट हो जाता है ड्यू टू रेन। तो इसका आंसर मुझे जो मिला मैं शेयर कर रहा हूँ कि डकवर्थ लुइस मेथड doesn't have a specific formula for calculating resource percentage. Instead it relies on a pre-calculated table that considers various factors like overs remaining and wickets lost. तो ये बहुत बड़ा मेरा डाउट था कि ये किस बेसिस पे ये कैलकुलेट करते हैं। जो मुझे मिला है मैं शेयर कर रहा हूँ। However, the core principle behind the method involves the following: resource percentage. This represents the remaining resource available to a team considering both overs and wickets. It's essentially a measure of their ability to score runs. Target adjustment. If a team's resources are reduced due to rain interruption, their target score is adjusted proportionally to maintain a fair comparison with the first team's inning. Here's a simplified explanation of how the target is adjusted. मान लीजिए कि टीम 1 का रिसोर्स जो है वो क्या क्या है। The resources available to the first team are calculated based on their overs and wickets lost during their innings. टीम 2 का रिसोर्स क्या है। The resources available to the second team are calculated based on the revised number of overs and any wicket lost. Target adjustment. If team 2 has fewer resources than team 1, their target score is reduced proportionally. If team 2 has more resources than team 1, their target score is increased proportionally. Key points: the Duckworth-Lewis method aims to create a statistically fair target for the team batting second, considering the resources available to both teams. The actual calculations are complex and involve a pre-calculated table that considers various factors. The Duckworth-Lewis method has been superseded by the Duckworth-Lewis-Stern method in most major cricket tournaments. Let me know if you would like a more detailed explanation of the Duckworth-Lewis-Stern method. Formula for Duckworth-Lewis resource percentage. तो इसका एक एग्जांपल हमें जो काफ़ी पूछने पे मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग मिला। मैंने रिपीटेडली जेमिनाई से इस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स पूछे थे, जिसके बाद जो मुझे मिला है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। Formula for Duckworth-Lewis resource percentage. The Duckworth-Lewis method calculates the resource percentage based on the number of overs remaining and wickets lost. The formula is resource percentage is equal to ब्रैकेट में आपका wickets remaining by 10, overs remaining by total overs to the power of 0.88.
अब ये टू द पावर ऑफ 0.88 क्यों ले रहे हैं ये फॉर्मूला में मुझे नहीं मालूम, लेकिन सपोज़ कीजिए कि टीम ए के पास 10 विकेट में से 7 विकेट गिर चुका है और 3 ही विकेट बचा है, तो विकेट्स रिमेनिंग टीम ए का हो जाएगा 10 माइनस 7 3, ओवर्स रिमेनिंग 20, मतलब आउट ऑफ 50 ओवर्स 30 ओवर्स ऑलरेडी बॉलिंग हो चुका है और अभी बचा हुआ ओवर है 20 ओवर और टोटल ओवर्स 50 है। तो रिसोर्स परसेंटेज ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो चूँकि 3 विकेट अभी बचा है आउट ऑफ 10, तो 3/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना ओवर है, तो 20 ओवर अभी बचा हुआ है आउट ऑफ 50 ओवर्स, तो इंटू 20/50, यानी जितना विकेट्स का रेशियो है रिमेनिंग वर्स इन मल्टीप्लाई बाय ओवर्स का रेशियो और टू द पावर ऑफ 0.88, जिसका की कैलकुलेशन करने पे 19.02% आ रहा है। देयरफॉर टीम A's resource percentage is 19.02%. This means that team A has used up 80.98% of their resources. 100% minus 19.02%, तो आप देख सकते हैं कि ये टीम ए का आउट ऑफ 50 ओवर्स 10 विकेट्स एंड जो है वो इन्होंने 19.02% यहाँ निकल के आ रहा है। या इन्होंने टोटल स्कोर नहीं बताया कि टीम ए ने कितना स्कोर किया था इन द 30 ओवर्स। एक ये आप बताइएगा आप कितना इस एग्जांपल से सेटिस्फाइड है जेमिनाई के आंसर से। 30 ओवर्स में इन्होंने पहले कितना स्कोर किया ये इन्होंने नहीं बताया है। तो ये था कुछ फॉर्मूला की रिमेनिंग ओवर्स यानी 20 आउट ऑफ 50 का रेशियो और रिमेनिंग विकेट्स का रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 3 आउट ऑफ 10 और 20 आउट ऑफ 50 रिमेनिंग ओवर्स का, और इन दोनों को टू द पावर 0.88 करके कैलकुलेट कर दिया इन केस ऑफ डकवर्थ लुईस रूल। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड सिनारियो, एग्जाम्पल ऑफ डकवर्थ लुईस विनर सिनारियो। टीम ए ने अगर स्कोर किया है 250 रन्स इन देयर 50 ओवर्स, टीम बी लूजेज 3 विकेट्स आफ्टर 25 ओवर्स एंड हैज़ 25 ओवर्स रिमेनिंग। तो कैलकुलेशन किस बेसिस पे हुआ है देखिए, टीम एज रिसोर्स परसेंटेज यूजिंग द फॉर्मूला विकेट्स रिमेनिंग बाय 10 overs remaining by total overs to the power of 0.88, 1 into 1 equal to 1 or 100%. Team B's resource percentage 10 minus 3 by 10 into 25 by 50 to the power of 0.88 equals to 0.7 into 0.634 और 44.38% पर स्कोर फॉर टीम बी। तो आप देख सकते हैं कि टीम ए का रिसोर्स परसेंटेज जो कैलकुलेट किया गया है उसमें विकेट्स रिमेनिंग बाय 10 ओवर्स रिमेनिंग बाय टोटल ओवर्स टू द पावर ऑफ 0.88, यानी 10 आउट ऑफ 10 विकेट्स रिमेनिंग था 50 ओवर्स, या यूँ कहें कि इन्होंने
ज़ीरो विकेट लॉस पे इन्होंने किया था तो 10 आउट ऑफ 10 हो गया, और 50 ओवर्स कंज्यूम कर लिया था तो 50/50 हो गया, टू द पावर 0.88 यानी 1/1 इक्वल टू 1, और 100% यानी टीम ए ने अपने 50 ओवर्स पूरा खेल के 100% रिसोर्स को यूज किया था। अब टीम बीज रिसोर्स परसेंटेज है, हाँ इसमें 10 विकेट्स के लॉस पे था शायद, या 10 विकेट्स रिमेनिंग है, तो 10 विकेट्स एक भी आउट नहीं हुआ था, तो उस केस में इन्होंने 100% रिसोर्स यूज़ किया। टीम बीज रिसोर्स परसेंटेज 10-3/10, 25 ओवर रिमेनिंग था आउट ऑफ 50, और वही टू द पावर 0.88, वो कैलकुलेट करके आपका परसेंटेज 44.38% आ रहा है। तो इनका एज पर डकवर्थ लुइस रूल है कि पार स्कोर फॉर टीम बी कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, टीम ए स्कोर जितना टीम ए ने स्कोर किया यानी 250 रन, इनटू टीम बीज रिसोर्स परसेंटेज, यानी जब रिसोर्स परसेंटेज कैलकुलेट हुआ 44.38 बाय टीम एज रिसोर्स परसेंटेज। टीम ए का रिसोर्स परसेंटेज आया आपका, टीम एज रिसोर्स परसेंटेज आ गया 250। अच्छा, टीम एज रिसोर्स परसेंटेज में 1 आ रहा था, कंप्लीट 100% यूज़ हो गया है, तो 1 या 100%, और ये इसको मल्टीप्लाई करके 110.95 आ रहा है, यानी 111 रन, अगर राउंड ऑफ किया जाए तो 111 रन। इफ़ टी बी स्कोर्स 111 रन्स और मोर इन देयर रिमेनिंग 25 ओवर्स दे विन। तो अगर 111 रन 25 ओवर में बना लेता है तो ऐसे ओवरऑल टीम बी को 250 यानी 251 रन्स बनाने थे, लेकिन टीम बी ने 25 ओवर तक 3 विकेट के लॉस पे कितना बनाया था इन्होंने इसमें बताया नहीं है, यानी अभी भी जेमिनाई आपको सही आंसर नहीं दे रहा। इफ़ टीम बी scores 111 runs or more in their remaining 25 overs, they win. If team B scores 110 runs or less, team A wins. Note: in real world scenario, the Duckworth-Lewis method uses more precise table and calculation to determine the par score. मतलब अगर टीम बी 111 रन बना लेती है 25 ओवर में तो जीत जाती है, और टीम बी अगर 110 से कम स्कोर बनाती है तो टीम ए जीतती है। और इसमें यह भी बता दिया गया है कि आपका इन रियल वर्ल्ड सिनारियो द डकवर्थ-लुईस मेथड यूजेस मच मोर प्रिसाइज टेबल एंड कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द पास स्कोर। अब मैंने जब इससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा कि आपने फर्स्ट केस सिनारियो में यानी टीम बी ने कितना स्कोर किया था 25 ओवर में, ये आपने नहीं बताया, तो इन्होंने फिर उसका रिस्पॉन्स दिया कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई मिस्ड अ क्रूशियल डिटेल इन द प्रीवियस रिस्पॉन्स, हियर्स द करेक्टेड वर्जन। सिनारियो: टीम ए scores 250 runs in their 50 overs. Team B scores 50 runs in the first 25 overs, loses 3 wickets after 25 overs, has 25 overs remaining. Calculation: Team A's resource percentage 100% as calculated before. Team B's resource percentage 44.38% as calculated before. Par score for Team B 110.95 runs as calculated before. Team B's actual score in first 25 overs 50 runs, score in remaining 25 overs 120 runs, total score 170 runs. Outcome: Team B's actual score 170 runs is greater than the par score 110.95 runs.
Therefore, Team B wins the match. I apologize for the repeated errors in my previous responses. I am still under development and learning to be more accurate and comprehensive. यानी इस केस में आपको बताया गया कि टीम ए का रिसोर्स परसेंटेज 100% था एज कैलकुलेटेड बिफोर। टीम बी का रिसोर्स परसेंटेज 44.38 आया था as calculated before, or as per Duckworth-Lewis rule, पावर स्कोर फॉर टीम बी आया था 110.95 रन्स, यानी कि 111 रन चाहिए था टीम बी को रिमेनिंग 25 ओवर्स में। तो अगर टीम बी का एक्चुअल स्कोर कितना हो गया, पहले 25 ओवर में इन्होंने अब सेकेंड रिस्पॉन्स में बताया कि 50 रन बनाया है, और स्कोर इन रिमेनिंग 25 ओवर्स में 120 रन मान ले टीम बी ने बनाया। तो पहले 25 ओवर में 50, सेकेंड में 120, टोटल स्कोर 170 रन्स हो गया, जो कि आपका एज पर डकवर्थ लुइस रूल जो पावर स्कोर का उन्होंने टारगेट डिटरमाइन किया था यूजिंग फार्मूला 110.95 यानी 111 रन्स, उससे ज़्यादा है। सो टीम बी विंस द मैच। तो इस तरह से कुछ आप और भी एग्ज़ाम्पल के द्वारा अगर आपको भी इससे रिलेटेड डाउट है तो समझ सकते हैं, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि 100% सेटिस्फाइड आंसर अगर आपको ना मिले तो भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। यानी 50+% आपका डाउट अगर आपको है इस टॉपिक से रिलेटेड, इन केस ऑफ रेन इंटरप्शन डिसीज़न कैसे लिया जाता है क्रिकेट मैच में, तो आप भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और you may or may not get a satisfactory answer, but yes, you can learn something from the response. थैंक्स। इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।